Hello students, in this video we will read about diary writing. Our section D, diary writing is 2 marks, and second section E, letter writing and report writing. So let's get start the video. So students, in this way जो डायरी राइटिंग है वो आपके पेपर में लिखनी है. सो हम रिवीजन एज ए रिवीजन ये डायरी राइटिंग करते हैं. राइट डायरी एंट्री ऑन द फुटबॉल मैच यू हैव रिसेंटली विटनेस्ड. तो फुटबॉल मैच इस तरह से आपको हेडिंग देनी है. हम डेट लिखेंगे, जैसे लेफ़्ट में प्लेस और अगस्त जो भी डेट है. और काफ़ी बार क्या होता है कि जो हमारा क्वेश्चन होता है उसमें एड्रेस दिया होता है, तो वो एड्रेस भी हम लेफ़्ट साइड मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं है. ए फुटबॉल मैच वॉज प्लेड बिटवीन आवर स्कूल, जनता हाई स्कूल एंड नेशनल हाई स्कूल ऑन आवर स्कूल ग्राउंड. The students of both schools were present. Large number of cheer up the players. You understand, students? Some outsiders also witnessed the match. The PT teacher of our school was the referee. तो यहाँ पे फिर पैराग्राफ चेंज होता है. Before the match began, the referee called upon the captains to toss. Our captain lost the toss and the opponents chose to defend the eastern goal. The referees then gave a short whistle at 4:30 p.m. and the match started. There were loud cheers from the supporters of the opponent's team. There were many tense moments when it seems that a goal was likely, but no goal could be scored by either of the two teams in the first half. फिर एक स्टेंजा चेंज हो जाता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. आफ्टर एन इंटरवल of 10 minutes, the game started again. It was truly exciting from the start. This time our opponents pressed our team hard for a time. It appeared that victory would be theirs. Our players were on the defensive now. The defense did not, however, prove very effective. The captain of the opponent's team got a chance and shot the ball through the goal post. Only 10 minutes before the end of match, our team scored a goal. The score was equal now. The match ended in draw. ठीक है, इस तरह से आपको डायरी एंट्री है वो लिखनी है. अब हम लेटर राइटिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पहले एक फॉर्मल लेटर है वो डिस्कशन करेंगे. राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट द न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे कैटल इन योर सिटी. कि काफ़ी बार होता है हमारे सिटी के अंदर जो पशु होते हैं ना वो आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, रुकावट क्रिएट करते हैं. तो देखिए यहाँ पे C/29 यहाँ पे एक एड्रेस दिया गया है. अक्षर गंगा 132 रिंग रोड, सैटेलाइट रोड, अहमदाबाद. उसके बाद डेट है टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसको लिख रहे हैं अहमदाबाद. ठीक है. डियर सर, तो ये इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट फॉलो करना है. फॉर्मल लेटर का ये फॉर्मेट है, याद रखना है. उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो हमारा मैटर होता है वो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द रिसेंट एक्सीडेंट्स इन द सिटी ऑन अकाउंट ऑफ कैटल ऑब्स्ट्रिंग द रोड्स एंड द व्हीकलर ट्रैफिक. दिस इज़ ऑल बिकॉज द कैटल ओनर्स letting loose their cows on the road. It is a common sight. Cows squatting on the roads, creating obstruction to the flow of traffic. Recently, a scooterist was fatally injured and was knocked down by a cow, and today he is laying in hospital with a fractured leg. There is none to take the responsibility. Although he was not in the wrong, still he is penalized. In another incident, a car going smoothly had a mishap. A cow suddenly came in front of vehicle just from now where he was hurt a little. Soon crowd gathered and car owner was forced to pay 1,000 rupees as a compensation.
Isn't it the responsibility of the municipal authorities and their subordinate staff to remove the stray cattle and allow a continuous flow the safe traffic? The negligent cattle owner should be brought to book and heavy penalized to that the motorists are safe. I request the city fathers to take up the matter urgently. I hope this letter, through wide circulation of your newspaper, would open the eyes of the concerned authorities and compel them to take promote action to let people breathe a sigh of relief by doing away with the nuisance. थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, यहाँ पे फिर नाम लिखना है. सो दिस इज़ फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. नाउ वी विल डिस्कस इनफॉर्मल लेटर. अब यहाँ पे देखिए कि हमने F1 में भी किया था. राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट सेंड बाय हिम टू यू. तो यहाँ पे कोई भी हेडिंग आ सकती है. राइट ए लेटर टू योर आंटी, ये फादर, तो कुछ भी हेडिंग है वो चेंज हो सकती है. तो ये इस तरह से हमें इनफॉर्मल लेटर है वो करना है. जैसे कि यहाँ पे 15 गिरी कुंज जवाहर चौक ये एड्रेस हो गया. उसके बाद माय डियर अंकल मैनी थैंक्स फॉर द प्रीसियस वॉच, या कोई भी जो अगर हेडिंग में दिया है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया है वॉच दिया है तो वही लिखना है, या फिर कुछ और दिया है तो वो लिखना है, या फिर कुछ अदर थिंग्स हम लिख सकते हैं. यू सेंड टू मी एज माई बर्थडे गिफ्ट. आई लाइक द वॉच वेरी मच. इट विल बी माई प्राउड possessions. I was in urgent need of a wristwatch. As I have to go to my school and classes regularly, the watch will help me a great deal in being punctual. We missed you very much on that day. It would have been a great joy to have you. Auntie and my cousin have us on that day, but I am glad that your blessings are always with me. Convey my best regard to my auntie. एंड जो भी नाम हो वो लिख सकते हो. आई थैंक यू वंस अगेन. तो स्टूडेंट देखिए ये सिर्फ हमें फॉर्मेट लर्न करना है, हमें ये नहीं कि पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे आएगा. नाउ वी विल डिस्कस रिपोर्ट राइटिंग. देखिए यहाँ पे राइट ए रिपोर्ट फॉर द स्कूल मैगजीन इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन द हेल्थ एग्जीबिशन इन योर स्कूल. और सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें प्लेस भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्कूल का नाम दिया गया है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे डेट लिखते हैं. और अगर हमारे क्वेश्चन में कोई एड्रेस दिया गया है तो वो एड्रेस लिखते हैं. यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एग्जीबिशन ऑन हेल्थ केयर. हेल्थ केयर का एग्जीबिशन है, ये हमारी मेन हेडिंग है, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है. पैराग्राफ्स चेंज करके ही हमें ये लिखना है. जैसे एन एग्जीबिशन ऑन हेल्थ केयर वॉज हेल्ड ऑन द, किसी स्कूल का नाम दे देना है, मॉडल ग्राउंड्स ऑन एनी डेट्स. देयर वर मैनी स्टॉल्स कम, सम ऑफ विच फॉर फ्री चेकअप्स. मैनी डॉक्टर्स वॉलंटियर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर कैम्प. देयर वॉज फ्री टेस्टिंग ऑफ आईज. स्टॉल्स वर टेकन केयर ऑफ बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल. हेयर चार्ट्स एंड मॉडल्स प्रिपेयर्ड इंटायरली बाय स्टूडेंट्स वर पुट अप. One was on the dental care and another one was on diabetes. There was an elaborated chart on physical fitness as well. The chief guest of the ceremony, Sri Guru Samant, was quite impressed by the effort of the students and the school staff. He thought that he was unique efforts on the part of the school. The program began at AM and lasted till 6 p.m. More than 700 children and parents visited the exhibition. All in all, it was a grand success. तो इस तरह से हमें रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, और ये ध्यान में रखना है कि इसी तरह से लिखनी है. हेडिंग है वो मेन अच्छे से जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हाईलाइट करके अच्छी तरह से लिखना है. और कभी भी ये नहीं रखना है कि एज इट इज़ ही एग्ज़ाम में आएगा. कुछ भी टॉपिक इसका मेथड है वो सेम रहेगा, बस हमारा क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, आवर F2 रिविज़न इज़ कंप्लीटेड. आई होप सब कुछ आपको समझ में आया होगा एंड अच्छे से पेपर करना है. ओके स्टूडेंट, राइट इन योर नोटबुक. थैंक यू.